कानून ने कि वो उसमें प्रोब करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है। दैट इज माय केस बिफोर दिस कोर्ट। ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं वही पढ़ूंगा। तैयार नहीं है वो तो कह रहे हैं कि आपको बुला सकते, देख कर इसलिए मैं इस मौकफ में देखने जा रहा हूँ। 209 पढ़ रहा हूँ पहले मैं, 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं। 209(1) पढ़ते हैं दोबारा। सारा जुरिस्डिक्शन का तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप बराए करम 208 पढ़ लें। 208 भी पढ़ लें, 208 पढ़ लें। देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना। 207 से शुरू करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चले then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200 formation of a political party। नहीं वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना। फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, अब मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, if your lordship says a political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred। ठीक है, no quibble with that proposition। A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting। ठीक है, I have no issues with that, that's the law। You can't have an issue with anything। It's the law of Pakistan। But what I mean is that this you not challenge them। but what this does not give the jurisdiction to the election commission। पढ़ ले 208 पढ़ ले। पहले 200 कमेंट कर दो इस पे 207 पे। 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कन्वीन नहीं की जनरल मीटिंग तो वो उसका सिंबल रिफ्यूज कर दे। That is 207 पे ये is my comment and my submission। 208 पढ़ लेते हैं आप। 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels wherever applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party। So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party, but it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुआ है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं सर। एक चीज लॉ में क्लियर आ गई, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections। वो उन्होंने लॉ ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते। जी, वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए, इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी बड़ी बात नहीं है उनकी। वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया। पढ़ेंगे ना वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इरेगुलर, मैं कराए लेकिन इरेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराए वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे। हाँ। But they are not to enforce this provision। There's nothing here which gives them the right to। A member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office। ठीक है, equal opportunity है। I can't say कि women are not allowed, I can't say minorities are not allowed। 14 लोग इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी, ये फैक्ट। मैं वो कहते हैं, मैं तो पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत, but question is if नहीं दी, they should have gone to the civil court। All members of the political party free, all members of the political party at the federal, provincial and local levels। कहना है सिविल कोर्ट इन तुर्बत। जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो बात, ऐसे आपने कह दिया ना गो टू सिविल कोर्ट, ऐसे बात नहीं चलेगी, आप दलाइल देना होंगे। राइट, सिविल कोर्ट इन तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party because a civil court it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा। आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए। देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो
और बाहर भी हो, ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है भाई, हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई अपना हम भी तो, हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट है सरांखों पर, ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं। हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना, अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपको मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन से नहीं कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहां से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा। जी मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं। हम देख रहे हैं कौन सा अदारा, मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसकी कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने। प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस। जी अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है और अब इसका इसी 208 में जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम, ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ईसीपी को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड, 2 लाख रुपए की जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी पढ़ी ना, सब सेक्शन 5 में ही है, सब सेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, नॉट irregularity but करे ही ना, शो कॉज विल बी इशू। उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सॉरी 5 subsection 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. आपका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं। अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया, अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके। अगर आप इसको पढ़ें दोबारा और से 5 को जी विदिन टाइम जी, ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी, ठीक है। यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, फेल्स टू कंडक्ट सर, अब विदिन टाइम, देखिए वेयर पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है। तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं। ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा। तो आगे आ रहे हैं ना, चले आगे देखते हैं। 208 में नहीं आ रहा, आप 209 पढ़िए पहले। आप 209 पढ़िए।
क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना, अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, जब तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना, तो वो 208 वाली बात खत्म है, इलेक्शन में तो खत्म हो गई। दैट इज माय पॉइंट, 208 वाली बात खत्म है। उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं लगाया, 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया। Maybe 208 is gone. Maybe because you are the political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है ना, ठीक है जी। अब आज 209 पे आ जाते हैं। A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी में 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है। पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन। नाम क्या ये तो इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो तो इलेक्शन की बात है ना, उसमें आया है। इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो देखिए जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है हर चीज आती है इलेक्शन पे जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं उसमें देखिए, अगर मेरा पॉइंट, अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, हरा दे उसको ना, एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो भी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका जवाब हमारे ज़हन में जो बात बिल्कुल मैं नोट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी आप कहें ये कानून बेमकसद वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन की बात बता देना किसको दिया है? कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इट हैज टू बी थ्रू ट्रायल। दिखा देना कहीं लिखा हुआ ऐसी बात, वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है ना। मैं उसमें भी आता हूं, पहले एक-एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चलिए उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है। और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ, and we are bound by the law because section 215 is not 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But so now इलेक्शन को कमीशन को तो इख्तियार the constitution of your own party के ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं? फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 के तमाम ये कंडीशन सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है।
ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये पाकिस्तान आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमें समझ तो आए बात को। मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें। कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है, 209 की नॉन कंप्लायंस 215 में मेंशन है ना, if you will read 215 whether the jurisdiction issue खत्म कर लूं 209 खत्म कर लेते हैं पहले, वो खत्म कर लेते ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? किस पेज? हाँ, ये कौन से पेज? ये भी पेज है, मेरे पास नोट है। किधर है, कौन से पेज? This is at page 65 जी। If your lordship turn to page 66 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, पे 65 पे फॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held, नहीं, certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ, वो पढ़। Page 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए। ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है। अब 2 पे आते हैं जी। ये लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना। अब 2 पे पढ़ 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में, तो 5 साल से पहले करा दिया ना सर। 5 साल होते थे, 22 को होगा ना जी। 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को हुआ ना सर। 12 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट। अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे हो सिलेक्शन को, नहीं वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पहले आगे बढ़ते जी, तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई। लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया। The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया। लगा ही नहीं सकते ना अब, ये नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं। सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना। एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वो जब कास्ट होंगे, देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया। देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे, सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है। वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े, या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। मतलब छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है यहाँ पे, कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन। अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड हो सकते हैं, मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए, जितने जबरन भी हुए, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार से बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज, ठीक है जी। वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज हो, ठीक है। मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान, सब हो गए अनअपोज, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा।
अच्छा देखिए, वही टेस्ट हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका, वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। सर अब ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। छोटा इसके साथ ही है, कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखिए जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको वहां से पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर। एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं। PTI has one huge leader which is इमरान खान। अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रॉब्ली अपोज दैट। नाउ वी कैन नॉट इंसिस्ट। खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रोबेबली जी, आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रोबेबली ऐड करके जी। तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है, फिर ये आमरीत है। अगर नहीं सॉरी, एक्चुअली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो, मगर अगर आप कहें कि वो जबरन कर रहा है किसी से, जबरन हो रहा है ना, कि 14 लोग हमारे सामने कि हमें इलेक्शन तो लड़ने दें, हम हार जाएं बेशक। उनका जो प्रूफ है, उनका जो एविडेंस है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सेकंड के लिए अज्यूम करें, वो दिखाइए हमें, अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए, दिखाएं पहले ना, इस बात को खत्म कर देना। एक सेकंड के लिए जरा सा पढ़ लीजिए ना, क्योंकि वो पहले मेरा जवाब तो देने दीजिए। अज्यूम कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि कोई नहीं आया, जेन्युइनली नहीं आया, दैट डज नॉट मेक द इलेक्शन वॉइड, क्योंकि आई कांट नहीं, आई वुड नॉट, आप उसको वॉइड कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा, जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया अनअपोज, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा पॉइंट नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखिए हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, ये आधी पौनी लंगड़ी लोड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए हैं चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग, अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। आपको उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सिर्फ उनको एक दो ले भी गए तो क्या मसला हो जाएगा? वो तो सर जो भी कह दे, उठ के आके कह दे, या तो आप लोग कहें वो कोई गैर आदमी दूर से सड़क पे चलता आ रहा है, बिल्कुल गैर आदमी लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी अच्छा कल हामिद खान से फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया है। पता क्या चल गया? क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, nobody said मैं तो when did you join the party? मैं तो when did you join the party? मैं तो बहुत recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 50 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gore join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? आपसे नहीं पूछ रहे ना आप, लेकिन पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना, या तो मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे जी। वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था, नाम बता देना, पीपल्स पार्टी में। तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें। हमारा कभी नहीं। आप उनको देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कम से कम बर्दाश्त तो रखें। उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में। अब दिखाएं, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, दिखा दें। मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिए, दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का, दे दीजिए जी। वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट, टर्मिनेशन लेटर। फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए।
किस पेज पे है? टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन किधर? टर्मिनेशन ही हमारे साथ है। इस पेज पे? अच्छा, मैं मेंबरशिप आप पहले पेज दिखाइए ना, पेज दिखाएंगे। एक बात तो खत्म करें हम इसको। टर्मिनेशन नहीं है, फिर इनको हम घर भेजे हैं साहब को, क्या हमें कॉपी है इसमें नहीं, ऐसे टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा ना, ये अलग से दे रहे हैं जी। हम कल पेपर बुक से आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग आपको आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं। पेपर बुक ले आए नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट। बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है। करेक्ट सर। टर्मिनेशन कमिंग बैक नहीं शो अस फिनिश दिस पॉइंट, व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की। मैंने आपको भेजा था सर वो नहीं, वो तो पुराना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप पे हमारे मेंबर कैसे बनते हैं। सेक्शन ये 201, दिस इज हाउ मेंबर्स आर टू बी फॉरवर्ड। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस एक राब्ता ऐप है व्हिच कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट आल्सो बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है। उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, उस सब के नाम आपको उसमें आ जाएगा। दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू If वोट। you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा Website is not evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी अभी कहिए ना, आप क्या आप सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आज नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज। आई एग्री सर। अच्छा फिर आई कांट टेक दैट डॉक्यूमेंट्स आप रिज्यूम कर लीजिए। अब आप दूसरी बात देखिए, मैं 209 पे आ रहा हूँ। नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना 205 पढ़िए। 215 नहीं 205 पढ़िए जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है। Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of No, it doesn't have, it's you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the ठीक है सर, if I can't show तो आप presume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है। If you are conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question: why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On is what basis all I did we can say. record such a statement? That is all I You can can say. say my statement may be recorded that the world is That is square. all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए अली जफर साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है, ठीक है, I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई, but the बुनियादी बात है कि इलेक्शन हो गया, खत्म। ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंटमैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया, तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं। कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। सो 14 लोग अगर समझ ये आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में। सही है। अच्छा, कमिंग बैक टू 209, आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, कह रहे हैं हो गए, मान ली उनकी बात नहीं। क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ।
मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दोनों बातें देखें ऐसे। मैं कह रहा हूँ, दे नॉट मेंबर्स, माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड। आप कह रहे हैं कि सबूत दें, सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें, There must be some expenditure. हम ये नहीं कह रहे सबूत, हम कह रहे कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205। तो मैं उस पे आप आगे जा रहा हूँ सर, वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा। मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये है कि दे नॉट मेंबर्स। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall we give him more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर। 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Section 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना वेबसाइट। आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए। इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। इजीली पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. core issue बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है। 2151 Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Masjid-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पूरा पढ़ लीजिए तो उसके बाद आगे। okay, ठीक है। Combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, provincial assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी रीडिंग ये है, आपकी रीडिंग है, but this section has been challenged whether the wording of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the election commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the 216 भी पढ़ लें। I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं with the interpretation. हाँ, जब आपके करनी चलेगी मुझे नहीं पता क्यों ब्रेक करनी पड़ेगी कब जो आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करेंगे मतलब मैम को देने वही वांट तो 5-7 मिनट करना चाहिए जब थोड़ा सा कर लंच ब्रेक। ये तशरीह नहीं मिल सकती कि 2 लाख देकर आप पार्टी में इलेक्शन ना कराएं। जब पार्टी इलेक्शन हो रहा था उस वक्त पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। इस वक्त सरबराह बानी पीटीआई थे बैरिस्टर अली जफर के रिमार्क्स
माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़े और सख्त तरीन रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए, पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। आपकी दरख्वास्त पर 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दी गई। आपकी जमात खुश थी, सब खुश थे। हमें अपने तमाम इदारों की ज़रूरत है जिनको मजबूत करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के मसले के ऊपर होने वाली समाअत 3 रुकनी बेंच इस वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में कर रहा है। आज पाकिस्तान में अदालतों का रसाई है। ऐसी बात नहीं कि कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। जब आप हुकूमत में थे हमें वहाँ भी जाना होगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से हमारे तमाम इदारों का नुकसान होता है। जब आपको इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिस जारी किया, पीटीआई अपनी हुकूमत वाली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करती। और जब आपको इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिस जारी किया, मीडिया में आकर इल्ज़ाम देने से आईनी इदारे कमज़ोर होते हैं। कागज को टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं। असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई। आप कहते हैं अभी रात है, मैं काम मलिक रिजवान आप इस वक्त मुलाजा कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त इंतहाई अहम केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा हैं, जबकि इसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं और इसके फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों एक फैसला सादिर किया था जिसके तहत पीटीआई को बल्ले का निशान दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला मौक़िफ़ किया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कल से ये समाअत जारी है। हम उमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम क्यों दयानतदारी के साथ फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते? आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। ये तशरीह नहीं मिल सकती कि 2 लाख देखकर आप पार्टी में इलेक्शन ना करें। मुबैना तौर पर आज फौज की मदाखलत नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। हम क्यों दयानतदारी के साथ फौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते? आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि फौज मदाखलत कर रही है। मुबैना तौर पर आज फौज की मदाखलत कहीं दिखाई नहीं देती। पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, सियासी ड्रामाबाजी करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। दरख्वास्त में 12 दिनों में इंतखाबात की तारीख दी गई है। आपकी जमात खुश थी, सब खुश थे जब इंतखाबात की तारीख दी गई थी। आज पाकिस्तान में अदालतों तक रसाई आसान है। हर कोई अदालतों तक रसाई हासिल कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाती है तो उनकी हुकूमत में कौन था ये बताना पड़ेगा। और इस वक्त सरबरा आपको बताएं क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? इंतहाई अहम रिमार्क्स इस वक्त चीफ जस्टिस के सामने आ रहे हैं। वो पीटीआई के वकील से इस्तफसार कर रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से हमारे तमाम इदारों का नुकसान होता है। जब आप हुकूमत थे तो हमें वहाँ भी जाना होगा, मालूम करना होगा कि क्या सूरत हाल थी। पीटीआई अपनी हुकूमत वाली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करती। आपको इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिस जारी किया। आपको बता रहे हैं इस वक्त इंतहाई अहम समाअत जारी है। मीडिया में आकर इल्ज़ाम लगाने से आईनी इदारे कमज़ोर से कमज़ोर होते हैं। आज पाकिस्तानी अदालतों तक सबको रसाई हासिल है। पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, इसके बरक्स सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाना आसान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इल्ज़ाम ना लगाएं अगर वो सच्चे हैं। जब आप हुकूमत थे इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस नहीं किया था। इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन सब हमारे इदारे हैं। पार्लियामेंट का कानून है कि पार्टियां अपने अंदर जमहूरियत लाएं। पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत इस वक्त 3 रुकनी बेंच कर रहा है जिसकी सदारत जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इनके साथ 2 रुकनी बेंच मजीद शामिल है। आपको खबर दे रहे हैं इस वक्त हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए पूरी टाइमलाइन देखना होगी। आपके अदवार में भी हमें जाना पड़ेगा, उस वक्त देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल थी। आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के केस की समाअत इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं कि अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल करने नहीं दे सकती। हम उमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं जबकि हमें देखना चाहिए तमाम तर मामलात में माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़े और सख्त तरीन रहा। हम क्यों दयानतदारी के साथ फौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते?
मीडिया में आकर जमात लगाने से आईनी इदारे कमज़ोर से कमज़ोर तर होते हैं। ये देखना होगा। बुनियादी नुकता, अगर इंतखाबात बाकायदा तरीक़ेकार से कराए हैं तो इंतखाबी निशान हर सूरत मिलना चाहिए, इंतखाबात की पेचीदगियों में ना जाएं। कल के रिमार्क्स भी इंतहाई अहम थे, जिसमें चीफ जस्टिस ने 12 इस्तफसार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से, जिसमें उनका कहना था कि आपने इलेक्शन किस जगह पर कराए वो जगह हमें बता दी जाए। एक छोटे से और गैर मकबूल गांव का नाम रख दिया गया, क्या वहां पर तमाम के तमाम अरकान आ सकते थे जो इंतखाबात देने वाले थे, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले थे। 8 लाख के करीब आपके वोटर्स हैं बगौर आपकी पटिशन के मुताबिक, तो 8 लाख लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात कहाँ हो रहे हैं। आज भी इंतहाई अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल करने तो नहीं दे सकती है। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे। अबरार सूरी हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, कहाँ जाता है ये केस दिखाई देता है इस वक्त? सूरत हाल ये है कि पीटीआई को बदला मिलेगा या नहीं, ये एक सवाल, ये निशान बना हुआ है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के मामले पर समाअत दूसरे रोज भी जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सदर में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए थे और साथ साथ पीटीआई के वकील हामिद खान की जानिब से भी कुछ हद तक दलाइल दिए गए थे। लेकिन आज समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील अली जफर, जो पेशावर हाई कोर्ट समेत लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के मुकदमात का में दलाइल देते रहे हैं, वो आज पेश हुए। तो दिलचस्प सूरत हाल जो है वो इस केस में सामने आ रही है। और खासतौर पर आज समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तफसीली आ गया है, जिस पर वकील हामिद खान ने कहा फैसला पड़ा है, पेशावर हाई कोर्ट ने बेहतरीन फैसला लिखा है। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन है, जबकि वक्त की किल्लत है, इसलिए जल्दी दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हमारे पास भी वक्त कम है क्योंकि फैसला भी लिखना है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 2 सवालात उठाए और कहा कि क्या अदालती दायरे इख्तियार था या नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं, जिस पर वकील अली जफर ने कहा न तो आइन और न ही इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाजत देता है। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 17 2 तरह सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह कर चुकी है। इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में आता है। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ जानिबदाराना और बदनीयती पर मबनी सलूक किया और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो शफाफ ट्रायल का हक दे सके, जबकि इलेक्शन कमीशन में कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। इसके अलावा कहा कि पीटीआई के किसी रुकन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात सिर्फ सिविल कोर्ट में ही चैलेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा दौरान समाअत वकील अली जफर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन में पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 14 दरख्वास्तें दायर हुई। हमारा बुनियादी मौकफ था कि दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने 32 सवालात भेजे जिनका तहरीरी जवाब भी दिया गया। जवाब मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया। इसके अलावा दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को उस वक्त नोटिस किया जब वो हुकूमत में थी। इलेक्शन एक्ट के आईनी हैसियत पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने चैलेंज नहीं किया, जिस पर वकील अली जफर ने कहा इलेक्शन एक्ट को हमने भी चैलेंज नहीं किया है। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या पीटीआई ने अपना जारी करदे शेड्यूल फॉलो किया था, जिस पर और कहा कि क्या इंतखाबात शफाफ थे, कुछ वाज़ेह था कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। इसके अलावा कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। अली जफर की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी किसी बेज़ाब्तगी की निशानदेही नहीं की, तमाम सवालात के जवाब दस्तावेजात के साथ दूंगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अली जफर के दलाइल जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली जफर समेत जो दीगर वकला वो कमरे अदालत में मौजूद हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। जी आम समाअत जारी है। अबरार बताइएगा क्या लगता है कि समाअत आज जो है रैपअप हो जाएगी या फिर समाअत अभी कल या परसों तक जाएगी? कल तो इतवार के दिन है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हफ्ता इतवार को भी बैठने को तैयार हैं। गुज़िश्ता दिन उनका ये स्टेटमेंट था। तो क्या उम्मीद लगती है कि आज समाअत कंप्लीट होगी या फिर कल या परसों तक जाएगी? जी बिल्कुल, देखें मुमकिन तौर पर आज इस केस की समाअत जो है वो
मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में भी इन तमाम मामला के हवाले से आज आखिरी दिन है और अली जफर की जानिब से भी अदालत को ये बताया गया था कि टिकट के हवाले से और इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज आखिरी दिन है, तो इसलिए आज किसी सूरत भी केस को निपटाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम भी यही चाहते हैं, हमारे पास भी वक्त नहीं है क्योंकि हमने फैसला भी लिखना है। तो मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है कि आज ही इस केस को खत्म कर दिया जाएगा, खासतौर पर 4 बजे से पहले। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन में जो मामला है वो 4 बजे तक इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल टाइम होता है उससे पहले ही इस केस को यहाँ से खत्म होना जरूरी है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना है या नहीं मिलना है इंतखाबी निशान, उस हवाले से कोई मुस्तकबिल फैसला हो सके। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रही है। अपने नाजरीन को आज की समाअत का अहवाल बताते हुए खबर देंगे कि PTI कहती है इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो इसको साबित करे। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। PTI को अपने दावों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं अबरार। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, कंक्लूड किया जाए, तो PTI का मुद्दा ये रहा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दबाव में है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के। इस हवाले से जो बयानिया PTI करता है उस पर चीफ जस्टिस का क्या कहना था और रिस्पॉन्ड के अंदर PTI के वकील क्या कहते हैं? इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि ये मामला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तब से इलेक्शन कमीशन में था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस वक्त भी कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इंतखाबात कराएं। अगर इलेक्शन कमीशन दबाव में होता तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, दबाव पे आ जाता, लेकिन अब तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुखालिफ जमात भी जो वो इक्तिदार में नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे, आप हमें बता